हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चार्ट पे बात वीकली सीजन वॉल्यूम नंबर 7। ओके, सो एज ऑलवेज आई होप आपका वीक ऑफ द ट्रेडिंग अच्छा रहा, प्रॉफिटेबल रहा, आपने अच्छे से जो है ट्रेड किया होगा। और मार्केट तो हालांकि काफ़ी चॉपी रहा है और थोड़ा सा इंडिसाइसिव भी है। हम लोग इस एपिसोड को रिलेट करेंगे हमारे लास्ट एपिसोड के जो कॉन्टेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके साथ। और आई होप इस लर्निंग शाला जो कि मार्केट शाला के द्वारा आयोजित की जाती है हर हफ्ते आपके लिए, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और इसी होप के साथ लेट्स लर्न टुगेदर विद मार्केट शाला episode number 07. So in this particular season, what we are going to learn in CPB chart पे बात volume 07 at Market Shala। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक मार्केट अपडेट्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर। उन सेगमेंट्स के अंदर निफ्टी भी होगा, उन सेगमेंट्स के अंदर आपका डाउ जोन्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उस सेगमेंट के अंदर बॉन्ड यील्ड्स कैसे काम कर रही है, गोल्ड का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है और इंडिया विक्स क्या बोल रहा है ये। और नेक्स्ट वीक जो है मार्केट का अपकमिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवमेंट क्या रह सकता है, दैट वी विल डिस्कस। और एज यूजुअल जिसका कि आप हमेशा इंतज़ार करते हैं, trade idea, a golden trade idea which you can look for and initiate ahead with your trading activity or what trading action, what do we say, right? And all these pointers will be discussed on the basis of chart analysis. Chart analysis is basically what we discuss here. It is based on प्राइस एंड एक्शन, लाइक जो कि हमारा जो बेसिकली हर किसी का एक अपना फोटे होता है एनालिसिस का। और अगर आप अपनी एक स्ट्रेंथ डेवलप कर लेते हैं मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आप उसमें इतना पारंगत हो जाएं कि आपको फिर और कोई सेकंड थॉट की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि किसी भी एक आर्ट में आपको महारत हासिल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो है चार्ट एनालिसिस बेस्ड ऑन प्राइस एंड एक्शन, राइट? सो लेट्स लर्न टुगेदर एट मार्केट शाला गाइस। Before that, I would like to present a disclaimer in front of you. We are not SEBI registered advisor. This video is for the educational purpose. Take advice of your financial advisor before taking any investment or trading position in the market. Second, if you like our educational content, do like and subscribe our channel and follow below mentioned mediums where we time to time share knowledgeable content. One is our blog post. The site is written here, marketshalapsychology.blogspot.com, and our Twitters, time to time tweets. We update our followers on our Twitter handle. It is twitter.com/somdays, som_days. And third, you can join our mentorship program also. Link I'll give in the description. So as I always say, and most of us know that learning is the core of earning. So before getting into the business of trading or business of investing, active investing in the stock market, a basic learning is required. And एक बार जो basic learning आ जाता है तो उसके बाद उसे आप gradually extend कर सकते हैं, enhance कर सकते हैं by learn more from the different channels, from the different mentors, from the different wherever, in whatever art of investing or whatever art of trading or whatever art of chart analysis आपको जो है impress करती है, आपको प्रभावित करती है, जिसके थ्रू कि आप आगे बढ़ के उस पर्टिकुलर आर्ट के अंदर अपने आप को एक महारत देना चाहते हैं, उसकी तरफ लर्निंग इज एन एंडलेस प्रोसेस despite of having an active journey of
around 2 decades, still we are learning, and the same learning we are sharing with our mentees, and it is sometimes give us a very good sense of satisfaction कि most of our mentees, those who are into the serious business of trading and investing, are really doing well. So let's not wait much and start this weekend Chart Pe Baat volume 07. So we will start from the Nifty performance, weekly performance this week, last week, the week which has already been concluded or finished. So as you can see, this is in front of you, the weekly chart what you have. It is Nifty 50 chart, our last weekly candle. I have enlarged this particular chart of weekly price in action, right? It is Nifty 50 spot chart. So as you can see, channel is still bearish. ये दोनों जो रेड लाइंस हैं, ये मैं जब आपको डेली चार्ट पे लेके जाऊंगा तब आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों रेड, ये जो चैनल है अभी भी डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सपोर्ट के पास भी ये खड़ा हुआ है। पिछली बार भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो इस सपोर्ट लाइन से और एक अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जा पाए, लेकिन जो ये सपोर्ट का जो एक बेल्ट है, टाइनी बेल्ट है, इसमें आप देखिए वीकली चार्ट पे इस प्राइस ने ब्रीच किया है, बट अभी भी उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर ये खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन है। अगर नेक्स्ट वीक ये पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन डिसाइसिवली ब्रीच हो जाती है और दोबारा ऊपर नहीं जा पाता है प्राइस, तो फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि इन दो में से एक सपोर्ट लाइन ब्रीच हो गया है, और फिर हम सेकंड सपोर्ट लाइन का वेट करेंगे कि अगर ये ब्रीच होता है तो एक बहुत ही डिसाइसिव डाउनफॉल निफ्टी में आ सकता है। इंडियन मार्केट्स के निफ्टी इंडेक्स में एक डिसाइसिव डाउनफॉल आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इनडिसाइसिव। नीदर वी कैन 100% say that market will move upward, nor we can say 100% that market will move downward. So let's take a look in the daily chart also once what it says. जैसा कि ये चार्ट पहले मैं एक बार छोटा करके आपको एट अ ग्लांस, मार्केट में जब भी कोई भी आप चार्ट देखें, मैं हमेशा आपको ये बताना चाहूंगा, पहले एक बड़े व्यू के साथ जो है चार्ट को देखा करिए, स्मॉल कैंडल साइज के साथ, जिससे कि आपको पता चले कि मार्केट एक लंबे टाइम होराइजन में किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। देखिए जैसे ये जो ब्लैक लाइन है, ये वीकली चार्ट के ऊपर जो है मार्क करी गई थी, जिसको कि डिसाइसिवली ब्रीच करने के बाद मार्केट नीचे आया। ये होता है प्राइस एंड एक्शन का जो प्राइस एंड एक्शन की जो पावर है वो ये होती है। एक बार आया नीचे यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर एक बार फिर इसने ब्रीच किया, डिसाइसिवली ब्रीच किया, और तब से लेकर अभी तक ये ऊपर नहीं जा पाया है। तब से ये चैनल जो है, ये चैनल आपका जो है डेली चार्ट के ऊपर, ये चैनल इस प्राइस मूवमेंट को नीचे ही लेके आता जा रहा है। लास्ट वीक में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके हिसाब से ये दो डोजी कैंडल्स बनी थी। अब मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूं। ये जो दो डोजी कैंडल्स बनी थी, इनके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद यहाँ पे जो है मंडे ऑनवर्ड, जो ये प्राइस एंड एक्शन मंडे से शुरू हुआ है, मंडे ऑनवर्ड शायद मार्केट इस जो मूविंग एवरेज है इसको चैलेंज करने के लिए ऊपर बढ़े। थोड़ा मूव वो ऊपर की तरफ किया भी, लेकिन फिर बाय एंड ऑफ द वीक आकर के वो वहीं के वहीं खड़ा हो गया अपने सपोर्ट लाइन के पास, जो कि हमें बताता है कि मार्केट अभी भी इनडिसाइसिव स्टेज पे है। क्यों? क्योंकि जो एक अगर अभी जब ये चैनल और जो मैंने पीछे अभी जो सपोर्ट लाइन बताया, ये जो सपोर्ट लाइंस हैं, जब ये टूट जाएंगी तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अभी फिलहाल क्या है, ये सपोर्ट लाइन बने हुए हैं जो कि मार्केट को नीचे जाने से रोक रहे हैं, और जब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा तो ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे। तब हम डिसाइसिवली ये बोल सकते हैं कि जब तक इन रेजिस्टेंस जो कि अभी सपोर्ट लाइन बनी हुई है, इनसे ऊपर मार्केट डिसाइसिवली क्लोज नहीं होता है, तब तक मार्केट बेयरिश मोड में रहेगा विद
more probability as compared to the probability of going upward the Nifty index। मतलब probability का जो परसेंटेज है वो इंक्लाइन हो जाएगा टूवर्ड्स बेयरिश मोमेंटम। हालांकि बेयरिश मोमेंटम अभी भी चल रहा है, लेकिन हम अगर यहां बीच में कहीं होते तो हम ये कहते कि ये बेयरिशनेस अभी प्रोबेबिलिटी बेयरिशनेस की ज्यादा है। बट अभी इस टाइम पे हम एकदम नियर सपोर्ट एरियाज हैं, जहां पे कि हम पिछले कई दिनों से लगभग 15 मार्च से लेकर के ये आपका 24 मार्च लगभग 10 दिनोों से हम लोग इसी सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं। तो एट द एंड निफ्टी का कंक्लूजन ये निकलता है कि वी आर इन एन इनडिसाइसिव मोड, कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा इन कमिंग वीक। तो मार्केट में जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, अच्छे खासे हेज के साथ आपको उन स्ट्रैटेजीज को मेंटेन करना चाहिए। अब देखते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स मैंने हमेशा बताया कि इंडिया विक्स जब भी लो मोमेंटम देता है, लो जो है साइड में जाता है, तब जो है मार्केट अपवर्ड मूवमेंट करता है, और जब इंडिया विक्स बढ़ता है तब जो है मार्केट डाउनवर्ड जाता है। तो देखिए ये जो है लास्ट वीक जो हमारा पिछला हफ्ता जो गया है, ये इसने अभी भी जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट किया है इंडिया विक्स ने। और ये ऊपर ये जो सपोर्ट वीकली चार्ट के ऊपर ये सपोर्ट ब्लैक लाइन से है, क्योंकि तो इस वजह से ये वीकली चार्ट पे ड्रॉ किया हुआ रेजिस्टेंस, जो कि अब ये रेजिस्टेंस इसलिए बन गया है क्योंकि अब आपका जो विक्स है वो इसके नीचे, उसके नीचे जो है विक्स रन कर रहा है। उसका जो एक्शन है, मूवमेंट है, वो इस सपोर्ट लाइन, जो पहले सपोर्ट लाइन हुआ करता था, अब वो आपका रेजिस्टेंस बन गया, उस रेजिस्टेंस के नीचे जो है फ्लोट कर रहा है। एट द सेम टाइम लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक इस इंडिया विक्स ने क्या किया, ये अच्छा खासा पिछले 4-5 दिन से ये नीचे आ रहा था, मार्केट का मोमेंटम अपवर्ड जा रहा था। लेकिन फ्राइडे को समहाउ एक न्यूज आती है कि गवर्नमेंट ने सर्विस ट्रांजैक्शन टैक्स इंक्रीज कर दिया है एफएनओ ट्रेडर्स के लिए। वो एकदम से जो है सेकेंड हाफ ऑफ दी ट्रेडिंग डे ऑन फ्राइडे वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट में लेके आता है। वो उसकी वजह से आपने जैसा कि निफ्टी 50 का चार्ट जो हमने लास्ट डिस्कस किया, वहां देखा कि निफ्टी कितनी तेजी से जो है नीचे की तरफ 17,000 का एक सपोर्ट तोड़ करके अराउंड 16,950 के आसपास जो है क्लोज करता है। उसकी वजह से ये एक जो मॉर्निंग तक ये जो कैंडल थी, ये बेयरिश कैंडल थी, जो कि शो कर रही थी कि इंडिया विक्स जो है डाउनवर्ड जा रहा है। ये एकदम से बुलिश कैंडल में कन्वर्ट होती है, जिसने जो कि शो कर रहा है कि इंडिया जो विक्स है, जो वोलेटिलिटी है, वो एकदम से इंक्रीज हो गया तो मार्केट इस वजह से गिरा। लेकिन अभी भी डरने की बात इस वजह से नहीं है, क्योंकि ये जो डाउनवर्ड चैनल जो ये चल रहा है रेजिस्टेंस का, ये अभी भी मेंटेन है। और खाली फ्राइडे छोड़ करके आप देखिए, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, इवन मंडे, जिस दिन की विक्स बहुत हाई भी रहा, उस दिन भी ऊपर जाके भी इसने जो क्लोजिंग दिया इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही दिया। तो अभी भी हम ये मान के चल सकते हैं, हालांकि जो है इसका मोमेंटम RSI 50 के ऊपर है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को ये बहुत समय से रिस्पेक्ट कर रहा है। इस वजह से हम ये मान के चल सकते हैं कि ये डे बाय डे जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता है, ये विक्स डिक्रीज होगा यहां से। और विक्स अगर डिक्रीज होगा तो हमारे चांसेस बनेंगे, निफ्टी सपोर्ट लाइन पे खड़ा है, विक्स डिक्रीज हो रहा है, बुलिश मोमेंटम के चांसेस बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बुलिशनेस की तरफ एनहेंस हो सकती है। अब देखते हैं डाउ जोन्स क्या कहता है। ये वीकली चार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, डाउ जोन्स का। लास्ट जो आपने देखा था कि लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था, वहां पे एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ था। ये देखिए, यहां पे मेरा कर्सर है, ठीक है। यहां से हम ये सोच रहे थे, हमने आपको अगर याद हो लास्ट टाइम हम कह रहे थे कि हो सकता है, हु नोज, कि ये जो कैंडल है ये एक मॉर्निंग स्टार बना करके हमें दे दे। हालांकि डाउ जोन्स ने कोशिश तो काफी करी, लेकिन जो है समहाउ
वो वीकली मॉर्निंग स्टार इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि लास्ट वीक का जो कैंडल है ये क्लोज कर रहा है 32,263 पर, और मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला, एक जो पैटर्न होता है वो ये होता है, कम से कम जो ये रेड कैंडल है, एक रेड कैंडल के बाद एक डोजी बने, नीचे एक सपोर्ट हो, सपोर्ट के बाद जो ग्रीन कैंडल बने वो कम से कम हाफ से ज्यादा जो है उसको कवर कर रही हो। कोशिश तो इसने करी थी, गया भी था, बट फिर वही थोड़ा सा जो है नीचे आकर के क्लोज हुआ, तो एक मॉर्निंग स्टार बनते बनते रह गया। हु नोज कि नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक है उसमें ये इसने जो कमी छोड़ी थी उस कमी को ये पूरा कर दे। एट द एंड हमें चाहिए क्या, चाहे वो 1 हफ्ते में आए या 2 हफ्ते में आए, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी है या तो इसको ओवर पास करके बाहर निकल जाए या फिर इसका आधे से ज्यादा के ऊपर क्लोजिंग दे, और सोने पे सुहागा तो तब हो जाएगा दोस्तों जब ये मोमेंटम जो आपका बनना है, ये आपका मूविंग एवरेज जो यहां शो हो रहा है इसके ऊपर अगर ब्रीच करके चला गया तो फिर डाउ जोन्स को जो है ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है इसको ये उसको रोक पाए, डाउ जोन्स के अपवर्ड मूवमेंट को, इसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काफी टाइम से ये डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ चल रहा है। इस वजह से हम जब यहां नीचे से देखते हैं, अभी हम आपको वीकली चार्ट जो ये दिखा रहे हैं, अब आप इसको देख सकते हैं, ये एक जो है कंप्रेसिंग जोन बन रहा है। कंप्रेसिंग जोन इज माय फेवरेट। कभी भी किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा दबाओ तो वो एक तरफ जो है अपना मोमेंटम देती है। आप देखिए ये यहां से दबते हुए प्राइस एंड एक्शन इधर आ रहा है और ये नीचे से जो है प्राइस एंड एक्शन जो है अपना प्रेशर बनाते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। ये ऊपर और नीचे का जो ये कंप्रेशन है, ये जो प्रेशर है, ये जैसे ही ऊपर या नीचे किसी भी तरफ ये प्राइस मोमेंटम जाएगा और तब आप देखेंगे कि कितनी तेजी से ये प्राइस मोमेंटम उस तरफ अपने आप को एक्सटेंड करने के लिए आगे बढ़ेगा। और ये प्रेशर जितना इंटेंसिव होगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा, जैसे अभी ये जो है इस पोजीशन पे है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और इसी दायरे में अगर ये रहता है, आप ये मान के चलिए अगर इसने अपना जो है इस पर्टिकुलर रेंज को यहाँ पे जहां पे एकदम प्रेशर मोमेंट एट द पीक होगा, अगर यहाँ पे अगर ये ब्रीच करता है एंड अगर ये अपवर्ड की तरफ ब्रीच कर जाता है तो अपवर्ड मूवमेंट, माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन बिलीव कि बहुत ही जबरदस्त जो है आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा। और सिमिलरली वाइस वर्सा अगर ये डाउनवर्ड ब्रीच करता है तो डाउनवर्ड भी इंपैक्ट उतना ही जबरदस्त आएगा। ये है खूबसूरती इस पर्टिकुलर पैटर्न की। तो डाउ जोन्स आप समझ गए हैं। इन नेटशेल बेसिकली पॉजिटिव बायस के साथ वो अभी भी अपने सपोर्ट को मेंटेन किए हुए हैं। और हम एक बार डेली चार्ट पे भी इसको देख लेते हैं। डाउ जोन्स का ये है डेली चार्ट। डाउ जोन्स हमने बताया था ये इसका सपोर्ट बेल्ट है। यहाँ पे ये पिछले 13 मार्च से लेकर के अभी 24 मार्च की कैंडल आप देख लीजिए, सपोर्ट एकदम ये मेंटेन किए हुए है जहां से कि ये नीचे नहीं जा रहा है। और ये मोमेंटम भी एक अपना ग्रीन सिग्नल, इसने फ्राइडे को जो है एक अपना ग्रीन कैंडल बनाया है। उससे पहले थर्सडे को एक परफेक्ट डोजी कैंडल इसने फॉर्म किया था, जो कि ये प्रूव करता है कि इसे नीचे जाने की कोई इच्छा नहीं है, मतलब बेयरिश होने की मार्केट को कोई इच्छा नहीं है। यहाँ टग एंड वॉर चला और फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को यानी कि कल, इसने एक बेयरिश बुलिश फॉर्मेशन दिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ दे करके एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया, यानी कि बुल्स जो है हावी रहे बेयर्स के ऊपर। तो सपोर्ट मेंटेन है, यस, ऊपर जो है रेजिस्टेंस है इन द फॉर्म ऑफ मूविंग एवरेज एंड द डाउनवर्ड दिस ट्रेंड लाइन। बट मुझे लगता है अगर एक बार मूविंग एवरेज को इसने ब्रीच कर लिया तो इसको स्ट्रेंथ मिलेगा बुल्स का। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो RSI है ये भी 50 के ऊपर आ जाएगा। तब ये जो रेजिस्टेंस है इसको
डाउ जोन्स के मूवमेंट को रोकना इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा एरिया या जोन इसके लिए ओपन हो जाएगा, जो कि आज की डेट में आप देखें जो ब्लैक लाइन है ये है 33,800 यानी कि 33,827 यानी कि 33,800 के आसपास तक इसके लिए मूवमेंट फ्री जोन आपको इसको मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स भी इसके साथ बढ़ेंगे और अपना अपवर्ड मूवमेंट दिखाएंगे, एंड वी विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट पॉजिटिव एनर्जी इनटू द मार्केट्स, और हमारे मार्केट्स को भी ये हेल्प करेगा अपवर्ड मूवमेंट देने के लिए। चलिए अब देखते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड वीकली चार्ट पर क्या कह रही हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं। ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट लाइंस, रेजिस्टेंस लाइंस ऑल आर सेम एज यू हैव सीन इन आवर लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में ये एक बड़ा जो है बेरिश कैंडल बना था, जिसने कि मूविंग एवरेज के नीचे जो है बॉन्ड यील्ड्स को लेके आया था। एक बार मूविंग एवरेज जो भी आप अपना मेंटेन करके चलते हैं उसके नीचे अगर प्राइस आ जाता है, प्राइस एंड एक्शन आ जाता है, तो फिर उसको जो है दोबारा से अपोजिट साइड में ब्रीच करना एक बहुत ही टेढ़ी खीर होता है। आप देखिए यहाँ पे RSI भी 50 के नीचे आ चुका है, और जो कि लास्ट वीक भी था, और इस वीक और जो है ये एक्सटेंड हुआ है। और इस बार जो है इस हफ्ते हालांकि बॉन्ड यील्ड ने कोशिश किया था इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाने का। देखिए विक्स आप देख पा रहे होंगे यहां तक गया था ये 3.64 तक, लेकिन वहां पे मूविंग एवरेज में एवरेज क्योंकि एक बार ये ब्रीच कर चुका है तो बियर्स ने इसको फिर जो है नीचे लेके आए। ये बॉन्ड यील्ड ट्रेड होता है यूएस मार्केट्स के अंदर, और इसकी जो क्लोजिंग है एकदम सपोर्ट के पास। सपोर्ट कहाँ है? देखिए ये ब्लू लाइन छोटा सा आप देख रहे हैं, ये जो है डबल टॉप एरिया था। याद होगा आई थिंक, अगर आप हमारे साथ लास्ट वीडियो में जुड़े होंगे तो हमने बताया था यहां से डबल टॉप बोला मैंने, डबल बॉटम एरिया था। यहां से डबल बॉटम बना करके ये हाई जो है मोमेंटम की तरफ गया था, वहां पे इसने लोअर हाई बनाया। ये डाउ जोन थ्योरी बोलती है अगर कोई भी प्राइस एक्शन मूवमेंट हायर हाई हायर लोज बनाता है तो वो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ है। अगर कोई भी प्राइस एंड एक्शन लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता है, वो इंडिकेशन है कि उस पर्टिकुलर चार्ट का जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ एक्सटेंड हो चुका है। तो ये जो है पहला हाई था, उसके बाद वीकली सेकंड हाई यहां से बनाने के बाद ये नीचे आया है। और अगर आप देखें तो ये जो इसका लो था उससे एक लोअर लो बन चुका है। ये इसका लो था 3.49 और अभी ये जो ट्रेड कर रहा है 3.38, यानी कि उसने अपना एक लोअर लो पे क्लोजिंग दे दिया है। तो ये एक कंफर्मेशन है कि ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ रहा है। और अगर बॉन्ड यील्ड नीचे की तरफ जाता है यानी कि डाउनवर्ड जाता है, बियरिश होता है, तो वो स्टॉक मार्केट्स को अपवर्ड मूवमेंट की तरफ लेके जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, अपवर्ड मूवमेंट की तरफ मूवमेंट देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? डाउ जोन्स सपोर्ट के पास है, निफ्टी सपोर्ट के पास है, इंडिया विक्स रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, डाउनवर्ड रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से वो उसको प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर है डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ जाने का, बेयरिश मूवमेंट की तरफ जाने का। एट द सेम टाइम यूएस 10 ईयर यील्ड ऑल्सो डिक्रीजिंग डे बाय डे। ये सभी जो है जो सपोर्ट जहां पे कि आपका डाउ जोन्स या फिर निफ्टी 50 खड़ा हुआ है, उसको एक स्ट्रेंथ देता है ये प्रोबेबिलिटी क्रिएट करने की कि वहां से वो एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाए। अब मैंने ये आपको बॉन्ड यील्ड का डेली चार्ट ओपन किया है, जहां पे कि आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे इस ब्लू लाइन का जो पैटर्न है। डबल बॉटम हम क्यों कह रहे हैं? डबल बॉटम बना करके जब कोई एक्शन ऊपर जाता है, जब कोई प्राइस ऊपर जाता है तो वो एक हाई बनाता है। ठीक है, जब ये इसने डबल बॉटम यहां पे बनाया और ये यहां पे हाई गया, जो कि लास्ट जो हाई बना था उससे
उससे नीचे था, लोअर हाई बनाया, और ये जो लास्ट लो बनाया था डबल बॉटम के आसपास, यहीं पे अभी ये जो है सपोर्ट लेकर के फ्राइडे को क्लोज हुआ है। ये जो डबल बॉटम है, अगर ये ब्रीच हो गया माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी आरएसआई इसका 50 के नीचे चल रहा है, यू कैन सेंस दैट दिस बॉन्ड यील्ड कैन गेट क्रैश्ड। और अगर ये बॉन्ड यील्ड क्रैश होता है, जो कि सारे पूरे वर्ल्ड में जेनेट येलेन और ये जो फेड की कमेंट्री और ये सब चल रहा है, ये सारा कंसर्न जो अभी इस टाइम मार्केट के ऊपर बना हुआ है इंटरेस्ट रेट्स का, ये सब चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और ये जो सपोर्ट, मैं फिर कह रहा हूं, ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही एक सपोर्ट था जहां पे कि डबल बॉटम से ये बॉन्ड यील्ड बढ़ी थी, और ये सपोर्ट इस वजह से और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सपोर्ट को अगर डे ऑन डे बेसिस पे अगले हफ्ते ये प्राइस एंड एक्शन ब्रीच कर देता है, क्लोजिंग नीचे ले लेता है, यू कैन स्टार्ट सीइंग अ very good upward movement in the Dow Jones. When Dow Jones will recover, definitely our markets and other emerging markets will also do well, right? तो चलिए अब हम देखते हैं those who have interest in the commodity like gold. बहुत लोग होंगे जो कि गोल्ड में भी ट्रेड करते होंगे। गोल्ड का जो ट्रेडिंग है उसका वीकली जो पैटर्न है वो क्या कह रहा है? वीकली पैटर्न में ये देखिए, ये अभी इस टाइम पे एकदम अपने रेजिस्टेंस के पास है। रेजिस्टेंस को एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ वीकली लास्ट वीक इसने ब्रीच किया था, लेकिन जो है पिछले हफ्ते हालांकि ऊपर जाने की कोशिश करी गोल्ड ने, लेकिन इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली ब्रीच करके क्लोज नहीं दे पाया है। तो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर वीकली इसके ऊपर क्लोज देता है तो आप एक बुलिश मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक वीकली रेजिस्टेंस बैक टू बैक दो रेजिस्टेंस इसके पास आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जो कि $2052 तक के हैं। $2052 हम लोग एक यूएस डॉलर के ऊपर डॉलर बेस जो है गोल्ड का चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड एक वर्ल्ड वाइड ट्रेड करे जाने वाली वन ऑफ दी मोस्ट ट्रेडेबल कमोडिटी है, और इसका की इफेक्ट आपके स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, उसके मूवमेंट के ऊपर भी पड़ता है। तो आप इसको अपने हिसाब से इंडियन रुपीस के कॉन्टेक्स्ट में एमसीएक्स के चार्ट पे कन्वर्ट करके अपना कॉल ले सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग टू एनालाइज द गोल्ड कमोडिटी, अभी यहाँ पे बुलिश जो है कोई भी कॉल लेना थोड़ा सा रिस्की इस वजह से हो सकता है कि अगर सपोज आपने यहाँ पे कोई कॉल लिया भी, तो अभी ऑलरेडी आप एक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज दिया है आपने, हो सकता है यहाँ से नीचे चला जाए। अगर ऊपर भी जाता है तो इमीडिएटली जो है 2038 और 2049 के आसपास डॉलर्स में इसको दोबारा रेजिस्टेंस जो है फेस करना पड़ेगा, फिर वहां से ये नीचे आने के चांसेस इसके बन जाएंगे। तो या तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो आप एक बेरिश कॉल ले सकते हैं बाय हैविंग स्टॉप लॉस ऑन दीज टू एरियाज, एंड एज वेल एज थर्ड वन इज दिस, राइट? और यू कैन वेट फॉर टेकिंग अ बुलिश कॉल टिल दिस प्राइस एक्शन डू नॉट ब्रीच और डू नॉट come over these resistance areas decisively। एक बार इसका हम डेली चार्ट भी देख लेते हैं कि डेली चार्ट क्या बोलता है इसका। डेली चार्ट में देखिए दोस्तों, यहां पे आप और अच्छे से देख पाएंगे कि ये वो कैंडल है जिसको कि हमने दिखाया था पिछली बार कि किस तरीके से इसने लास्ट वीक में ब्रीच किया था इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया को, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली डे ऑन डे बेसिस पे ये जो प्राइस एंड एक्शन है गोल्ड का, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। तो एज आई सेड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेडिंग कॉल ऑन बुल साइड, वेट फॉर क्रॉसिंग दीज टू रेजिस्टेंस एरियाज डिसाइसिवली, और take a bearish call by having stop loss on these two resistance line. If any day on a week on week basis price of gold closes above these two resistance areas, mark my words once again,
इफ एनी ऑफ द डे और वीक वट एवर चार्ट यू आर स्टडिंग, अगर वीकली चार्ट के हिसाब से आप कॉल ले रहे हैं तो ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर वीकली क्लोज देना जरूरी है। और अगर आप डेली चार्ट के ऊपर कॉल ले रहे हैं तो पहला जो है आपका स्टॉप लॉस इसी लाइन के ऊपर हो जाना चाहिए। अगर इस लाइन के ऊपर वो क्लोज दे देता है, अगर इस लाइन के ऊपर डे ऑन डे बेसिस पे क्लोज दे देता है तो आपको अपने बेरिश कॉल से निकल जाना है, जो कि आपका जो है अभी इस टाइम पे बहुत ही फेवरेबल ट्रेडिंग कॉल बन सकता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही करीब है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जो है आप अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज करके रिस्क एंड रिवॉर्ड को एनहेंस करना चाहते हैं तो सीधे जो है आप वीक ऑन वीक बेसिस पे ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर वीकली क्लोज पे स्टॉप लॉस रखिए और फिर उसके हिसाब से एटलीस्ट 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ बेरिश कॉल ले सकते हैं। बुलिश कॉल आई वुड से टू अवॉइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने बहुत सारे रीजंस अभी डिस्कस किए स्टॉक मार्केट के अपवर्ड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी की तरफ, और ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन है गोल्ड एंड इक्विटी मार्केट्स का, कि जब भी इक्विटी मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं गोल्ड की परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो इस वजह से अगर हम वहाँ देखिए सारी चीजें, सारे डॉट्स हैं, इन डॉट्स को आपको जो है ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर इन डॉट्स को आप ऐड नहीं करेंगे तो एक कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसका की एग्जिस्टेंस जो है इंडिविजुअल हो, हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आई होप गोल्ड के ऊपर भी आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। तो अब इंतजार नहीं हो पा रहा होगा, चलिए अब हमारा टाइम आ गया है स्टॉक ऑफ द कमिंग वीक, गोल्डन ट्रेड आइडिया। और इस बार आपके लिए मेरे पिटारे में कुछ डिफरेंट तरीके हैं। उससे पहले वो उसका मैं लॉजिक भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टॉक ऑफ द वीक। तो स्टॉक ऑफ द वीक है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये आप अभी देख रहे हैं डेली चार्ट अल्ट्राटेक सीमेंट का। यहां मैंने पहले ही आप ये देखिए, मैंने प्रॉफिट बुकिंग आपका जो है अब यहाँ पे आपको लॉन्ग करने के लिए सोच सकते हैं आप। ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अल्ट्राटेक सीमेंट इज ट्रेडिंग एट 7405। you will have to maintain day on day basis this stop loss 7110 and profit booking you can maintain at 8050। अब हम बताते हैं लॉजिक इसके पीछे क्या है। सबसे पहले इस डेली चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो मैंने फिगर बनाया हुआ है इसको मैं वीकली चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ऊपर जा रही है, ये एक सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, और इसकी वजह से हमने यहां पे एक ये बुलिश कॉल लिया है। बुलिश कॉल लेने के और भी कई जो है मेजरमेंट्स होते हैं, वो एक डिटेल्ड मेजरमेंट है जिनको कि हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है, जिससे कि हम एक अच्छा कॉल ले पाए जिसकी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। RSI आप देख सकते हैं 50 के ऊपर है। ठीक है, और अपवर्ड मूवमेंट इसका बना हुआ है कंटिन्यूअसली। आप अगर देखें 11 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, और अब ये अपनी ट्रेजेक्टरी को जो हायर ट्रेजेक्टरी है उसको तोड़ने के एकदम करीब है, और जो इसका मूविंग एवरेज है वो भी इसके जस्ट एकदम नीचे है। और आप देखिए मार्केट फ्राइडे को गिरा है, लेकिन इसका प्राइस एंड एक्शन देखिए, इसने जो है अपना मोमेंटम गिव अप नहीं किया है, एक डोजी बना करके रुका है, जहां पे कि मार्केट में ब्लड बाथ था ऑन फ्राइडे, और ये फ्राइडे को एक डोजी बना रहा था, जहां पे कि इसने रिजेक्ट कर दिया अपनी स्ट्रेंथ को गिव अप करने से। अब हम देखते हैं वीकली चार्ट पे ये किस तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा है। अब मैं यहां पे बताता हूं कि ये फिगर क्या है। ये फिगर है माय डियर फ्रेंड्स हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर एक चार्ट पैटर्न होता है, बहुत ही स्ट्रेंथ वाला चार्ट पैटर्न होता है। यहां पे भी एक डिसाइसिव मूवमेंट के बाद यहां पे भी पोजीशन लिया जा सकता था, बट हम
कोई भी पोजीशन तब लेते हैं जब उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी हमारे फेवर में आ जाए। तो हमने वेट किया ये, और जिनका कि एक अच्छा खासा रिवॉर्ड के लिए जो है चेज करते हैं, उसमें रिस्क भी जो है वो थोड़ा सा मतलब प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा लेने के फेवर में रहते हैं, वो जो है जैसे ही ब्रीच होता है इस हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, वहां पे भी अपना कॉल ले सकते हैं। जैसे जैसे जब भी ये जो जहां पे कि इसने ब्रीच किया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस लाइन के आसपास वो प्राइस आता है, तो समवेयर अगर 6834 के आसपास कोई इस प्राइस एंड इस पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से अगर कॉल लेता है, तो उसका एक अपना स्टॉप लॉस भी एज पर द प्राइस ऑफ एक्शन होना चाहिए। बट अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो कमिंग वीक का ट्रेड आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। तो एक स्ट्रेंथ जस्ट आपको बताने के लिए कि ये ऑलरेडी जो है अराउंड अक्टूबर 22 में अपना एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रीच कर चुका है, और जब इस तरीके के पैटर्न वीकली चार्ट्स पर ब्रीच होते हैं तो ये बहुत लंबी दूरी बनाते हैं, लंबी दूरी तक जाते हैं अपने प्राइस मूवमेंट के साथ। तो ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है, और इसके बेसिस पे हमने ये अदर एस्पेक्ट ऑफ द चार्ट्स को कंसिडर करते हुए ये ट्रेड आइडिया ऑफ द कमिंग वीक लिया है। कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट रखना है, कहाँ पे जो है हमें मंडे को जहाँ पे भी ओपन होना है वहाँ पे हम इसको लॉन्ग करने का सोच सकते हैं, और एक स्टॉप लॉस कहाँ पे हमें लेके चलना है और उसके पीछे क्या लॉजिक है वो हमने डेली चार्ट मूवमेंट पे जो है हमने आपको बता दिया। क्योंकि हम एकदम ये जो रेड वाला जो सपोर्ट लाइन है अपवर्ड मूवमेंट का, इसके जस्ट नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा है, जो कि 1:2 के हिसाब से सेट हो रहा है हमारी प्रॉफिट बुकिंग एरियाज के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेड आइडिया एट द लॉन्ग साइड। आप लोग सोच रहे होंगे ट्रेड आइडिया एट द लॉन्ग साइड, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? देखिए, उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा पिछले हफ्ते का ट्रेड आइडिया। पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो, हमने जो ट्रेड आइडिया दिया था वो था गोदरेज सीपी। मार्केट में दुनिया भर की उठापटक के बावजूद अगर किसी ने इस ट्रेड को इनिशिएट किया होता एट द ओपनिंग ऑफ द मंडे प्राइस विच वाज एट 954.90, मार्केट ने निफ्टी में देखिए कितनी बड़ी कैंडल, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाना चाहूंगा वीकली चार्ट के ऊपर, कितनी बड़ी कैंडल मार्केट ने वीकली चार्ट के ऊपर बनाई है। ये क्या ओपन हो गया भाई? अच्छा, ये देखिए मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वीकली जो है ये करीब 1% डाउन होकर के बंद हुआ, और इसका पूरा मूवमेंट तो जो रहा 17,086 मतलब हाई 17,200 पर हाई गया है, और इसने लो बनाया है 16,828। मतलब आप समझ रहे हैं लगभग 400 पॉइंट का जो है इसने वोलेटिलिटी दिखाया। और हमारा जो ट्रेड आइडिया था उसने जो है अपने आप को कूल एंड कंपोज, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ थी प्राइस एंड एक्शन के अंदर, अपने आप को कूल एंड कंपोज रखते हुए जहां था वहीं का वहीं खड़ा रहा और अपनी बारी का इंतजार करता रहा कि कोई बात नहीं बेटे, इस हफ्ते जो है नहीं दे रहे हो मुझे चांस, मुझे स्ट्रेंथ नहीं दे रहे हो, अगले हफ्ते दोगे मैं अगले हफ्ते बढ़ूंगा, बट यहां से गिरूंगा नहीं। इस हफ्ते इसने अपने आप को बचाया। लेकिन अगर हमने मंडे को ये कॉल लिया तो समवेयर कहीं हमें कोई गेन तो नहीं हुआ। चलिए हमने लॉस नहीं किया, लेकिन गेन भी कुछ नहीं हुआ हमें। तो उसके लिए मैंने इस बार आपके साथ अपना एक और जो अस्त्र है वो आपके साथ शेयर करने का सोचा। हम जाएंगे लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी के साथ। तो लॉन्ग हमने बता दिया कि हम जा रहे हैं अल्ट्राटेक के साथ। देयर इज वन मोर कैंडिडेट विच वी आर गोइंग टू शॉर्ट। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द कैंडिडेट इज सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये डेली चार्ट है। यहाँ पे मंडे मार्केट में जहाँ पे भी इसका प्राइस ओपन होगा, हम सोच सकते हैं, हम वर्कआउट कर सकते हैं इसको कि हम वहाँ पे इसको शॉर्ट पोजीशन लें अगेंस्ट दी लॉन्ग पोजीशन ऑफ दी अल्ट्राटेक सीमेंट, और हमारा स्टॉप लॉस 1:2 के हिसाब से 88 रुपए के आसपास हो। करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 82 रुपीज 35 पैसा,
और हमारा जो टारगेट 1:2 अप्रॉक्स के हिसाब से हम मान के चलते हैं कि 70 रुपीज़ के आसपास हो। अब आप यहाँ देखेंगे कि ऊपर से डेली यानी कि जो रेड लाइन ऊपर से नीचे आ रही है प्लस ये जो ब्लैक लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, वीकली एंड डेली दोनों बेसिस पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जनवरी 2023 से, और अभी हम मार्च में हैं। तो ये प्रेशर ऊपर से बनता रहेगा, प्लस ये मूविंग एवरेज भी ऊपर से प्रेशर बना रहा है, प्लस हम ये मान के चल रहे हैं कि मंडे को मार्केट में अगर थोड़ी भी कमजोरी रही तो ये जो सपोर्ट लाइन है, ये जहाँ पे कि अभी आकर के रुका हुआ है सेल का प्राइस, ये इस प्राइस को ब्रीच कर देगा, और ये ब्रीच करने के बाद ये जो रेड लाइन है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी। और जब ऊपर से तीन फोर्सेस, ये रेड लाइन, ये ब्लैक लाइन डाउन ट्रेंड का, प्लस ये सपोर्ट लाइन, जब ये तीन फोर्सेस प्रेशर लगाएंगी तो ये जो वीकली अपवर्ड मूवमेंट है इसके ब्रीच होने के चांसेस, मतलब एक के अगेंस्ट में तीन जो है फोर्सेस जब प्रेशर लगा रही हैं, ऑब्वियसली एक तरफ तीन लोग खड़े हों और दूसरी तरफ एक आदमी का पंजा हो, तो एक आदमी का पंजा तीन आदमी मिलके गिरा ही देते हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं ये वाला जो काफ़ी समय से जो वीकली अप ट्रेंड का मूवमेंट जो बना हुआ था, जिसको कि हायर, ये जो हाई है इसके बाद जो लोअर हाई बनाया है, लोअर हाई, और फिर जैसे ही ये जो मोमेंटम, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट ये मोमेंटम इस सपोर्ट को तोड़ेगा, लोअर लो में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये क्या होगा, ये बनेगा लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, डेली डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, वीकली डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, प्लस सपोर्ट which has been maintained since December 22 will be breached, that will become resistance। ये चार चीजें जब ऊपर से मिलके जोर लगाएंगी तो ये जो अपवर्ड जो ट्रेंड लाइन है इसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और फिर हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ही 70 रुपीज़ के आसपास आएगा तब हम अपने ट्रेड को एसेस करेंगे और देखेंगे कि इस ट्रेड को किस तरीके से ट्रेल किया जाए, क्योंकि जब हम वीकली चार्ट पे जाते हैं, ये हमने 1:2 के हिसाब से प्रॉफिट एरिया जरूर यहाँ पे मेंटेन कर लिया है, लिख लिया है, लेकिन दोस्तों इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ आ रहा है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आ रहा है यहाँ पे, हमने 70 रखा है, इसका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 64 रुपए पे। तो उसके बाद इट इज अप टू अस कि हम किस तरीके से इस ट्रेड को ट्रेल करें, अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करें। प्रॉफिट्स एरियाज देने का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट बुक करके निकल ही जाएं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें कि आप हेज करते हैं पोजीशंस को, जिसमें आप ट्रेल करते हैं पोजीशंस को और अपने प्रॉफिट्स को एक्सटेंड करते चले जाते हैं। तो ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 10 में से 4 बार सही हो रहे हैं और 6 बार गलत हो रहे हैं, 1:2 आपको जरूर प्रॉफिट देके चला जाएगा, लेकिन उन 4 बार में आपने 1:2 को 1:5, 1:10 में कन्वर्ट कर दिया तो समझ लीजिए वारे न्यारे हो गए। आई होप मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। तो दोस्तों ये था हमारा चार्ट पे बात दिस वीक। आई होप आपको पसंद आया होगा, वैल्यूएबल चार्टिंग एनालिसिस का आपको जो है एक आइडिया लगा होगा। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आपको ये पूरा सीजन पसंद आ रहा है, वीक ऑन वीक बेसिस आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ब्लॉग पोस्ट्स को पढ़ें, उससे आपको काफ़ी इंसाइट मिलेगी, हमारे ट्वीट्स को टाइम टू टाइम पढ़ें, और दोज हु आर न्यू एंड दोज हु आर इवन वर्किंग एक्टिवली इनटू द ट्रेडिंग बिजनेस एंड दे want to do this trading as their full-time business or want to do some active investing thing, और mentorship के लिए आप अगर कहीं पे अगर आप look for कर रहे हैं, हमारा एक इंटरेस्ट सीकिंग फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे गो थ्रू करें, आप उसे भरें, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपकी रिक्वायरमेंट को समझेगी एंड अकॉर्डिंगली आपको एक valuable solution देगी। This much I can commit you. So thank you so much for this week. See you again in coming week with valuable ideas and valuable learning.
Meanwhile, if you have any concern related to, or any question, any query, any discussion if you wish to do with us, just put your comment. Put your comment in the comment box. Definitely we will get back to you. Thank you so much. Bye bye. Have a good week coming ahead and profitable week as well. Thank you so much. See you again next week. Bye bye.